মঙ্গলবার বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের ভাজপা দলের প্রার্থী মীনারানী সরকারের সমর্থনে বিজয় সংকল্প সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল ১৪ বাধারঘাট মণ্ডলের উদ্যোগে। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিনের এই সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড মানিক সাহা। তাছাড়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আসামের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, স্থানীয় এলাকার বিধায়িকা মিমি মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা। এদিনের এই সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কমিউনিস্ট শাসনে ত্রিপুরার মানুষ অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদ, শক্তির আস্ফালন, আতঙ্কবাদ, উগ্রবাদ ছিল ত্রিপুরায় নিত্যদিনের ঘটনা। ত্রিপুরার মানুষ ছিল আগে অসুরক্ষিত। 2018 সালে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকার রাজ্যের মানুষকে সুরক্ষিত করেছে। রাজনাথ সিং বলেন, 2018 সালের আগেও বিজেপির প্রচারে এসে তিনি রোড শো করেছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় আসবে। সেটা সত্যি হয়েছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনের আগে জনসভাগুলোতে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা ভিড় করে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তাতে আবারও ত্রিপুরায় দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসছে বিজেপির সরকার, সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। मैं त्रिपुरा के लोगों के बारे में कह सकता हूं, कितनी मुसीबतें आपने झेली हैं। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद आए दिन लोगों की जानें चली जाती थी। व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। इस त्रिपुरा में बहनों भाइयों, वह दिन भी हमने देखा है। 2018 का जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के दौरान भी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था और मेरा रोड शो भी यहां पर हुआ था। रोड शो में जनता का जो रिस्पांस हमको मिला था बहनों भाइयों, मैंने उसी दिन कह दिया था 2018 में कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी से सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और इस बार जो मैं यहां पर भीड़ अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप फिर से दोबारा डॉक्टर मानिक साहा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए ही इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहां पर गुड गवर्नेंस, जो सुराज दिया है, उस सुराज को और अधिक ताकत देने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सब इकट्ठे हुए। রাজনাথ সিং আরও বলেন, আগের ত্রিপুরার সাথে বর্তমান ত্রিপুরার আকাশ পাতাল তফাৎ। আগে আগরতলা শহরে ছিল আবর্জনার স্তূপ। রাস্তাঘাট কিছুটা ভালো থাকলেও নাগরিক পরিষেবা ছিল তলানিতে। আগরতলাবাসীদের সাথে বিদ্যুতের চপলতা ছিল নিত্যসঙ্গী। আজ আগরতলা শহরের স্বচ্ছতা অবাক করে দেওয়ার মতো। এর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য। এই 5 বছরে ত্রিপুরাকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। শুধু ত্রিপুরার নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থা, আতঙ্কবাদ উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে এখন বিদায় নিয়েছে। बहनों भाइयों, पहले का भी ये अगरतला हमने देखा था। अगरतला में गंदगी थी, सड़कें अच्छी नहीं। अगरतला के कुछ मोहल्लों में भी मैं गया था, लोग कहते थे साहब हमारे यहां कभी बिजली आती है, कब चली जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिजली यहां की हम लोगों के साथ आंख मिचौनी करती है। यह हालात थे। लेकिन आज मैं अगरतला की सड़कों को देख रहा था बहनों भाइयों, और जिस प्रकार की सफाई की व्यवस्था हमने अगरतला में देखी, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं डॉक्टर मानिक साहब को अपनी और उनकी पूरी सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसके पहले भी जिस सार्वजनिक सभा को मैं संबोधित करने गया था, वहां पर भी मैंने देखा। मैं विप्लव जी से कहा था, विप्लव जी इन 5 वर्षों में आप लोगों की सरकार ने तो करिश्माई काम कर दिया है। जनता के साथ में सीधी बातचीत कर रहा था, जनता जवाब दे रही थी। बहनों भाइयों, अब तो अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद का सिलसिला त्रिपुरा से ही नहीं बल्कि। রাজনাথ সিং বলেন, ত্রিপুরায় ল অ্যান্ড অর্ডার পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। অসুরক্ষিত অবস্থায় কোনো দেশ কিংবা রাজ্যের বিকাশ হতে পারে না, কারণ উন্নয়নের মাপকাঠি হল সুস্থ ও সুষ্ঠু আইনের ব্যবস্থা প্রণয়ন। এখন এই ব্যবস্থাটি ত্রিপুরাতে কায়েম রয়েছে।
তিনি বলেন, আগে ত্রিপুরায় অপহরণের ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কে কখন খুন হয়ে যাবেন সেটা খুন হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ জানতে পারত না। ত্রিপুরায় কোনো নাগরিকের জীবনের গ্যারান্টি ছিল না। ত্রিপুরার এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কেন্দ্রে মোদী সরকার আসার পর। আর এই পরিবর্তন শুধু ভারতবর্ষের লোক নয়, গোটা বিশ্বের লোক দেখেছে। कानून और व्यवस्था की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बेहतर हुई है और बिना सुरक्षा के, बिना बेहतर कानून व्यवस्था के बहनों भाइयों कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो विकास नहीं कर सकता। विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यह अब हमको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। नहीं, पहले तो आए दिन अपहरण की घटनाएं होती थी। कब कौन उठा लिया जाएगा, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी। 2014 में आप लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, फिर से दोबारा आपने 2019 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। बहनों भाइयों, परिवर्तन केवल आपको ही नहीं दिख रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं दिख रहा है, सारी दुनिया को परिवर्तन दिख रहा है कि भारत कहां जा रहा है। এদিন রাজনাথ সিং আরও বলেন, ভারতবর্ষের মানুষ দুইবার করোনার টিকা পেয়ে গেছেন। গোটা বিশ্ব যখন করোনার প্রকোপে টালমাটাল, সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় গবেষণাগারে করোনার টিকা বানিয়ে দেশের মানুষকে সুরক্ষিত করেছেন। রাজনাথ সিং এর দাবি, ভারতবর্ষে যতদিন পর্যন্ত করোনার প্রকোপ থাকবে ততদিন পর্যন্ত গরিব অংশের মানুষ রেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাবার পেয়ে যাবেন। कोरोना का प्रभाव यहां पर भी था। कोरोना की महामारी यहां थी कि नहीं, मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, कोरोना के संकट से निपटने के लिए यहां की सरकार ने इस तरीके से प्रभावी कदम उठाए हैं कि मैं आज बिना आप लोगों से पूछे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, जितने भी त्रिपुरा के लोग हैं, सारे लोगों को कम से कम 2-2 डोज कोरोना की लग चुकी होगी, दवाओं की, वैक्सीन 2-2 डोज लग चुकी होगी। और ऐसे हालात केवल भारत में ही देखने को मिलेंगे, दुनिया के दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने, विश्व बैंक के चेयरमैन ने भारत के इस करिश्मे की तारीफ की है। कहा है कि कोरोना के संकट से निपटने में जिस तरीके से प्रभावी कदम भारत की सरकार ने उठाया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब कोरोना के संकट के दौरान लोग काम छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से अपने घरों की तरफ पैदल चल पड़े थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे 1000 किलोमीटर की यात्रा पर पैदल निकल पड़े थे अपने घरों को जाने के लिए। लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे। कहां से भोजन मिलेगा, कहां से परिवार की परवरिश होगी, क्या होगा मासूम छोटे बच्चों का। बहनों भाइयों, उस समय दुनिया का अकेला देश भारत था जिस भारत के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि जब तक यह कोरोना का संकट रहेगा और इस कोरोना के संकट का प्रभाव जब तक रहेगा, हम मुफ्त राशन हर परिवार को मुहैया कराएंगे, मुफ्त राशन हर परिवार को मुहैया कराएंगे। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी इतने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों के परिवारों को, हर व्यक्ति को 5-5 किलो का राशन आज भी मुहैया हो रहा होगा, आज भी मुहैया हो रहा। क्या कभी রাজনাথ সিং এদিন আরও বলেন, 2024 সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে শৌচালয় তৈরি হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এই কাজ হচ্ছে। এর আওতা থেকে একটি ঘরও যাতে বাদ না যায় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংকল্প নিয়েছেন। कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी होगा जो यह संकल्प ले ले कि हमारे हिंदुस्तान में एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में शौचालय न हो। यहां जितने लोग खड़े हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिस घर में आज शौचालय न बन गया। यदि नहीं बना होगा तो 2024 समाप्त होते होते बहनों भाइयों, एक भी घर जो बचे होंगे वह भी शेष नहीं बचेंगे जहां पर कि शौचालय की व्यवस्था न हो। তীব্রমাথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোরকে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং বলেন, তিনি নিজে একটি পার্টি তৈরি করে ফেলেছেন, কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কি চাইছেন সেটা তিনি নিজেই জানেন না। ত্রিপুরার জনজাতিদের বিকাশ চায় বিজেপি, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় কখনোই দেবে না ভাজপা।
জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন করছে বিজেপি সরকারই, কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জনজাতিদের অবদান বিজেপি সরকার কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। তাই ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিনটি আদিবাসী গৌরব দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই জনজাতি সমাজের জন্য সিপিএম সরকার এবং কংগ্রেস ত্রিপুরাতে কিছুই করেনি। ত্রিপুরায় আগে এই দুই দল থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করত, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারা জোটবদ্ধ হয়ে ভোটের লড়াইয়ে নেমে গেছে। তারা বুঝে গেছে এই দুই দল কখনই এককভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাজিত করতে পারবে না। এখানে তাদের আচরণ প্রমাণ করছে ত্রিপুরায় তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, তারা বিগ জিরো। আর এই দুই জিরো পার্টি মিলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জিরো ফোন করবে, এমনটাই অঙ্কের নিয়ম। শুধু এই দুই দলই নয়, আরও 4 পার্টির জোট হলেও বিজেপিকে ত্রিপুরায় কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বিজেপির জনসভাগুলিতে যেভাবে লোকজন যোগদান করছেন তাতে প্রমাণ হয়েছে আগামী দিনে 50-এর বেশি আসনে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। आदिवासी समाज के लिए क्या काम किया है सीपीएम की सरकार ने, क्या काम किया है कांग्रेस की सरकार ने? पहले ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, आज ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी यह मान लिया है दोनों लोगों ने कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अरे भाई, कांग्रेस भी जीरो अपने को मानती है, सीपीएम भी अपने को जीरो मानती है, तो जीरो और जीरो मिलकर कितना होगा? जीरो होगा। ऐसी पार्टियां 2 नहीं 4 मिलकर यदि सरकार बनाने की कोशिश करें तब भी परिणाम जीरो होने वाला है। और इस बार तो जैसा माहौल हमको देखने को मिल रहा है, इस पब्लिक मीटिंग में भी जैसा माहौल हमको देखने को मिल रहा है, बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है इस बार 60 में कहीं आप लोग 50 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। রাজনাথ সিং বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ এই রাজ্যের জনগণকে ডেন্টাল কলেজ উপহার দিয়েছেন, এটা অবশ্যই গর্বের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও স্বপ্ন দেখেছেন ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য এইমস ধাঁচের মেডিকেল কলেজ স্থাপনের। এটাই মুখ্যমন্ত্রীর সেবার মনোভাব। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মনের ভেতরে রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে এত ছটফটানি থাকে, সেই রাজ্যের বিকাশ কখনো আটকে থাকতে পারে না। এত ছোট রাজ্যে এই ধরনের চিন্তাভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর বৃহত্তর মানসিকতার পরিচয় দেয় বলে জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। बहनों भाइयों, यहां पर चिकित्सा मेडिकल की सुविधा, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर मानिक शाह जी, आपने डेंटल कॉलेज शुरू करा दिया है, डेंटल हॉस्पिटल। आपको और आपकी सरकार को मैं बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, अभी रास्ते में हमसे मानिक शाह जी चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब, मेरे दिल की तो बस एक ही हसरत है, इस बार यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, हमारी सरकार यदि बन जाए, एम्स के स्तर का एक यहां पर वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को चिकित्सा के लिए। यह बताइए, जिस मुख्यमंत्री के दिल में इस प्रकार की तड़पन हो, जिस मुख्यमंत्री के दिल में इस प्रकार की आग हो, उसके राज्य का विकास होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मेरे बहनों, हम तो सोचे भी नहीं थे कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य, जहां पर कि बामुश्किल 35-40 लाख लोगों की आबादी है, वहां एम्स के स्तर का एक हॉस्पिटल बनाने के बारे में वहां का मुख्यमंत्री सोचे। जिस मुख्यमंत्री के दिल में आग होगी, बहनों भाइयों, वही जनता की सेवा कर सकता है। এডিসি এলাকার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি সরকার কিভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, বিগত কমিউনিস্ট শাসনে ত্রিপুরার জনজাতিদের জন্য ছিল মাত্র 21,000 কোটি টাকার বাজেট। বর্তমান সরকারের আমলে জনজাতিদের জন্য 88,000 কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জনসভায় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সমালোচনায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, মথা সুপ্রিমো বারবার বলেছেন জনজাতিদের জন্য সুরক্ষিত এলাকার প্রয়োজন, কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর ভুলে গেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন জনজাতি মহিলা। বহুদিন কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থা থাকলেও কেন্দ্রে এই ধরনের পদক্ষেপ কখনই নেয়নি কংগ্রেস। এখন তাদের জনজাতিদের জন্য দরদ উথলে উঠেছে। দেশ যখন রাষ্ট্রপতি পদে দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করছিল, তখন কংগ্রেস এবং সিপিএম এর বিরোধিতা করে। এখন তারা জনজাতিদের কল্যাণের জন্য নাকে কান্না শুরু করেছে। রাষ্ট্রপতির কোনো জাত হয় না, রাষ্ট্র ধর্ম পালন করাই রাষ্ট্রপতির কাজ। প্রদ্যুৎ কিশোরকে সতর্ক করে এমনই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। केवल ट्राइबल वेलफेयर के लिए केवल 21,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज सुनना चाहते हैं आप कितने का बजट है? सुनना चाहते हैं? ट्राइबल आदिवासी भाइयों के लिए कितने का बजट है?
पहले 31,000 करोड़ का था, अब 88,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया है भैरव भाई। अब मुझे किसी ने बताया क्या हो गया है प्रदीप किशोर जी को, मेरी समझ में नहीं आता। लोग कह रहे थे कि प्रदीप किशोर जी, देव वर्मा कभी कभी कहते हैं कि हमको सिक्योर्ड लैंड चाहिए आदिवासी, सिक्योर्ड लैंड, सुरक्षित। अरे बहनों भाइयों, प्रद्युत जी इस बात को भूलिए मत। इस देश ने हमारी एक आदिवासी बहन को भारत का राष्ट्रपति इस देश ने बनाया है। कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। इतने दिनों तक कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं इस काम को लोगों ने किया? आज आदिवासियों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। जब वो चुनाव में खड़ी थी, सारा देश उनको समर्थन दे रहा था राष्ट्रपति पद के लिए। ये कांग्रेस और सीपीएम के लोग विरोध कर रहे थे। ये लोग आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। बहनों भाइयों, राष्ट्रपति होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई पंथ नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, राष्ट्र धर्म का पालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च इंडिया TNN।